Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. Hi Ajay, I wanted to ask you one question. So, the movie is giving us the same feels as it gave when you appeared in Kache Dhage. So, how can we say that both the characters are similar or different? The characters are completely different. I think you're getting this feel because that film was also done in Rajasthan, and this film was also done in Rajasthan. But the characters are completely different. The story is completely different. The only similarity is that it's maybe Rajasthan or desert or rugged locations. It's been how many years? It's been 19 years, so things have changed a lot. Okay, thank you so much. My question is for Imran Hashmi sir. Sir, you really constructed your career as a leading. Constructed your career as a leading role-playing characteristic, which morally questioned about. You have played Underworld Dawn. You have played Boki. You have played even the pornographer. You generally accept such kind of scripts, or it just eventually came to you? I just want to ask you this thing. Well, yeah, predominantly I get most of my films that I've done have been, I wouldn't say just grey characters. Hello. And they have been slightly twisted and quirky in their own way. I think I enjoy playing that. I don't see myself playing any goody two-shoe character because I find them boring. Because if a character does everything politically correctly on screen, I don't find there to be any drama. And I think most of my characters and the genres that I dabble with, the kind of subjects, have certain dark shades. I don't see them as that dark, but there's a perception because generally in our industry, there's so much of fluff that's there. Generally, there's love stories and comedies and all that. Then whenever you slightly go off that beaten path, then you're perceived as being slightly, playing darker shade characters. But I guess there's a slight inkling towards that genre and those kind of characters for sure. Excuse me, sir. My question is that the movie is based on basically emergency, the situation that. So lately, quite a few movies are made on the same topic. What different is your movie offering to the audience? Why should the audience come and watch your movie? I think there's been one film released lately, which I think is a political drama. I have not watched that film, but that's a very different approach, a different genre totally. And ours is more of an action adventure, more of a heist drama, a multi-starrer. So there's a completely different take. Emergency is common, but what the film deals with is totally different. So no real worries. And also, our film does not talk about the emergency. Emergency is the backdrop of the film. It's about the characters. आई एम सुनीता उपाध्याय 24 टुडे चैनल से। हिमेश जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है, अभी तक तो आपने रोमांटिक फिल्में ज़्यादातर की हैं, अब एक्शन फिल्मों का करने का आपका मौका मिला है, तो कैसा आपको अनुभव लग रहा है और कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? वेल, एक्शन फिल्म मैंने आज तक की नहीं है, आउट एंड आउट एक्शन फिल्म। मैंने थोड़ा बहुत एक्शन किया है अपनी फिल्मों में, बट ये एक बहुत ही अलग किस्म का एक स्ट्रक्चर था, एक बड़े एक्शन सेट पीसेस थे। तो इसमें एक चैलेंज था कि मैं एक्शन कर रहा हूँ, लेकिन अजय के साथ विद्युत भी बहुत सारा उन्होंने एक्शन फिल्म्स की हैं दोनों ने, तो दोनों का सहारा ज़रूर मिला इस फिल्म में। एंड आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ जॉनर जो मैं दोबारा करना चाहूँगा, बट इट हैज़ टू बी ऑन दिस स्केल, क्योंकि बादशाह एक बहुत ही बड़ी बजट की फिल्म है। सो अगर ऐसी दूसरी फिल्म मिलेगी तो डेफिनेटली करूँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शरद चंद उपाध्याय। सर, मैं अजय सर, इमरान सर और मिलन सर से सवाल पर पूछना चाहूँगा। सर, चाहे वो कच्चे धागे का आफताब हो, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का सुल्तान मिर्ज़ा हो, या फिर बादशाहों में भवानी हो और आपका डलिया सर, मिलन सर ऐसी कौन सी बात पिचिंग में आपको बताते हैं कि आपको लगता है कि ये कैरेक्टर, ये रोल हमें तो करना ही है क्योंकि ये आगे चल के मेमोरेबल होने वाला है? और सर, मिलन सर, आपसे एक खास सवाल मेरा ये है, राम गोपाल वर्मा ने अपनी बुक गन्स एंड थाइज में अजय सर को मेंशन किया था
कि ये इनके चेहरे पे ऐसी उदासी, ऐसा आलस है जो किसी भी एक्टर से ज़्यादा एक्टिव है। तो जो किसी भी एक्टर से ज़्यादा एक्टिव है, किसी भी चेहरे से ज़्यादा एक्टिव है। तो अगर इट इज़ सो लेजी दैट इट इज़ सो एक्टिव, ऐसा उन्होंने सर गन्स एंड थाइज में लिखा है। उन्होंने कंपनी को मेंशन किया था और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई को भी मेंशन किया है कि कंपनी इंटेलिजेंट है तो वंस अपॉन अ टाइम मुंबई इमोशनल है, जो आप कई बार अपना डिफरेंस बताते भी रहते हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा और सर आपसे भी कि डायरेक्टर एक्टर की पिचिंग में क्या होता है, और आपको अगर इन्हें डिफाइन करना हो वन लाइन में तो मैं कौन से सवाल का जवाब सर आप प्लीज अजय सर वाला बताइए कि अगर आपको अजय सर को एक लाइन में डिफाइन करना हो कि तो मैं ये कहूँगा कि सिनेमा की जो उनकी समझ है वो बहुत गहरी है और बहुत इंस्टिंक्टिव है। जब मैंने पहले इनके साथ पहली बार जब काम किया, मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो मेरे बॉस महेश भट्ट साहब ने मुझे कहा था कि जब मैं अजय देवगन को कहानी सुनाता हूँ तो वो 5 मिनट में पूरा का पूरा उसका जो रस है कहानी का वो अपने जहन में उतार लेते हैं। तो आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू एक्टर्स हु ग्रास्प सो फास्ट व्हाट अ डायरेक्टर वांट्स, बिकॉज एक्टर्स की जर्नीज में बहुत सारे फिल्म मेकर्स आते हैं अलग अलग किस्म के। हर फिल्म मेकर का सुर पकड़ना और उसको इम्बाइब करना एक्टर का काम होता है। वो अजय बहुत अच्छी तरह करते हैं और बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि आप किस सुर में बात करना चाहते हैं। ये एक सवाल मुझे याद था, आप दूसरा वापस पूछिएगा। आई थिंक जो मिलन का प्लस पॉइंट है, जिससे बात पूरी समझ में आ जाती है, मिलन अच्छी फिल्में बनाते हैं, बड़ी फिल्में बनाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इनकी जो समझ इमोशन की है और जो गहराई रिलेशनशिप्स की है, वो सबसे अच्छी चीज़ है। और वो शुरू से रही है, जब मिलन असिस्टेंट थे तब से। आई थिंक कहीं वो इनको अपने घर से भी मिला है और कहीं भट्ट साहब से भी मिला है, तो एक वो बहुत अच्छी बात है। और मिलन और मेरी अब जो दोस्ती है वो 19 साल से ज़्यादा, क्योंकि कच्चे धागे से नहीं है, उससे पहले जैसे मिलन ने कहा कि जब वो भट्ट साहब के साथ थे तब से। तो हमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ती। मुझे इससे एक कंफर्ट जोन आ जाता है। मुझे पता है कि मिलन सोचते कैसे, मिलन को पता है कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, तो एक अच्छा रापो बन जाता है और बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे ख्याल से इमरान का जहाँ तक सवाल है, मैंने अभी तक ये बात एनालाइज नहीं की है, लेकिन अब जब सोचता हूँ तो इमरान इज अ मिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट एंड डीप थिंकिंग। वो पहले अपने इंस्टिंक्ट से रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ा सा वक्त लेते हैं सोचने के लिए। आई थिंक उनका जो प्रोसेस है वो ये है कि मैं हर तरह से कंफर्टेबल हो जाऊं तब मैं फिल्म करूंगा, कि मेरा इंस्टिंक्ट भी कहता है ये करो और सोच विचार भी ये कहता है कि ये फिल्म करनी चाहिए। तो वो पहला हर्डल जब वो पार कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब खैर तीसरी फिल्म है हमारी, तो एक कॉन्फिडेंस है, एक ट्रस्ट है म्यूचुअली, और उनके साथ ये है कि जितनी मेहनत वो करते हैं अपने कैरेक्टर पे और अपने परफॉर्मेंस पे, वो दुनिया को नहीं दिखाते हैं वो, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अपने आप एकांत में काफ़ी लगन से, काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ, काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी तैयारी के साथ सेट पे आते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म में जो उनका परफॉर्मेंस है वो उनके करियर का सबसे एंटरटेनिंग कैरेक्टर होगा। इमरान जी, मैं अली अब्बास नकवी, चैनल 1 न्यूज़ से। सबसे पहले तो इमरान जी से मेरे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बेटा कैसा है, और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, एक अखबार में आया था, आपने कहा था कि मैं डायरेक्टर या फिल्म इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पूछता था, उसकी वजह से
मुझे 2-3 फ्लॉप फिल्में देखनी पड़ी। अब आपने एक मुझे उसमें आपने एक लिखी थी कोट था आपका कि अब मैं अपने दिल की करूँगा और मैं अपनी तरीके से चूज़ करूँगा। तो अब ये बादशाहों जो फिल्म है वो आपके दिल से ही है और जो नेक्स्ट फिल्म जो आप करेंगे वो अपनी ढंग से करेंगे। हाँ, पहले तो मेरे बेटे बहुत अभी ठीक है, he's recovered very fast, thank you for asking. हाँ, आई थिंक मेरे करियर में एक दौर था जब मैं फिल्में कर रहा था, क्योंकि जो भी फिल्म आ रही थी मेरे पास, जो स्क्रिप्ट्स आ रही थी, ज़्यादा मैं एनालाइज नहीं कर रहा था और मैं चाहता था कि मैं घर पे नहीं बैठूँ, मैं रोज़ाना काम करूँ फिल्मों में। लेकिन अभी एक चाह है मुझ में, मैं बहुत ही फोकस्ड हूँ अच्छी कहानियों को लेकर। मैं सिर्फ बिना वजह फिल्म नहीं करना चाहता हूँ। एंड आई बी ऑनेस्ट, 4-5 years बैक देयर वाज अ सिचुएशन वेयर मैं ऐसी फिल्में कर रहा था, बट आई एम नॉट द सेम पर्सन आई वॉज 5-6 years बैक। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम अभी राज का एक और फ्रेंचाइज पार्ट करोगे या मर्डर का एक और फ्रेंचाइज पार्ट करोगे, आई डोंट थिंक आई विल गेट इनटू दैट। आई वुड वांट टू डू द फिल्म्स नाउ दैट रिफ्लेक्ट माई थिंकिंग। तो आई थिंक बादशाह उस किस्म की फिल्म है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू अ हाइस्ट फिल्म, लेकिन इस किस्म की स्क्रिप्ट मुझे आज तक नहीं मिली थी। दे वर ऑल लो ऑन आई गेस कॉन्सेप्ट्स एंड सब्सटेंस। तो इसके बाद भी इस चीज़ को मैं डेफिनेटली बरकरार रखूँगा। ईशा जी से भी, और ईशा 2 हीरोइन हमारी रह गई, वो अभी तक उनसे हम नहीं पूछ पाए थे। ईशा जी, आपने तो इमरान जी के साथ भी की है फिल्म। आप अजय देवगन जी, इमरान जी दोनों को एक साथ मिला के दोनों हीरोइन से मैं पूछाऊँ किस तरीके से कॉम्बिनेशन रहा और किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा? इमरान के साथ, जी हाँ, ये मेरी तीसरी फिल्म है। मगर आई थिंक इमरान और अजय दोनों का प्रोसेस बहुत सिमिलर है। एज एन एक्टर ऑन सेट आई एम टॉकिंग अबाउट। दोनों बहुत ही काम है, दोनों बहुत ही पेशेंट है, बहुत प्रिपेयर्ड, ऑफ कोर्स बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। तो उनके आई थिंक इट्स द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो दैट हेल्प्स। और जब आप सेट पे होते हैं तो बिकॉज दोनों बहुत काम है, इतने प्रिपेयर्ड रहते हैं, एज समवन फॉर समवन लाइक मी हु इज़ फेयरली न्यू, सेट पे बहुत अच्छा माहौल रहता है। क्योंकि अगर आपका कहीं 19-20 रह जाता है तो उनकी हेल्प से और उनकी परफॉर्मेंस से वो आपको एक तो बहुत चीज़ हेल्प करती है। प्लस अगर आपको कहीं पे जैसे 1-2 बार हुआ कि कहीं पे समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, तो अजय ने भी एक बार हुआ, इमरान ने भी, ऑफ कोर्स मिलन सर वाज ऑलवेज देयर, कि उनकी हेल्प से, बिकॉज हम सब इन दोनों ने हमेशा बोला कि अगर सामने वाले एक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो फिल्म को बेनिफिट होगा। और दोनों ऐसे एक्टर्स हैं कि हर एक को बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं। बिकॉज जब आप इतने अच्छे एक्टर्स के साथ होते हैं एक ही स्क्रीन पे, और मेरे लिए तो 3 बहुत अच्छे एक्टर्स हैं थ्रू आउट स्क्रीन पे, जो आप सेट ट्रेलर में भी देखेंगे, संजय मिश्रा, अजय एंड इमरान। तो आपको आप पे प्रेशर भी होता है, और मगर एक हिसाब से प्रेशर हट भी जाता है क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों हैं। बट बहुत ज़्यादा हेल्प रहा है और बहुत मज़ा भी आया काम करने में। प्लस लाइक आई सेड, आपको सीखने को भी बहुत मिलता है क्योंकि इनके एक्सपीरियंस से और इनकी एक्टिंग से भी आपको बहुत सीखने को मिलता है। सत श्री अकाल सर, मैं MH वांदो। मेरा सवाल अजय जी ਨੂੰ है। मिलन जी दी मूवीज़ दी खासियत है उन्हां दा म्यूजिक, भावें कच्चे धागे, भावें द डर्टी पिक्चर और हुण बादशाहो, क्योंकि टाइटल पंजाबी च है। मैं चैनल भी पंजाबी च काम करदी है, मेरा सवाल भी पंजाबी च है, अजय जी खुद पंजाबी है। तो इस फिल्म च तुहानू भारी भरकम डायलॉग्स मिले हैं? जे हाँ, क्योंकि तुसी शायरी बहुत खूबसूरती नाल करदे हो। और ये भी गल पूछना चाहांगी कि फूल और कांटे 91 दे विच 26 साल पहलों जो तुसी बाइक वाला स्टंट किया सी, अजय जी तुहानू लगदा है उस स्टंट दी कोई बराबरी अज तुहाडी फिल्म कोई कर पाई है? मेरी कोई फिल्म कर पाई है तुसी पूछ रहे हो? मेरी फिल्म आई थिंक टाइम बदल गया है। वो स्टंट तब किया था और तब ना कोई केबल्स थे, ना कोई ऐसी इक्विपमेंट थे। आज बहुत आसान हो गया ये सब करना। तो आज तो आप जो चाहें कर सकते हैं, बट उस वक्त बहुत मुश्किल था। तो अगर बराबरी की बात करें तो जैसे जैसे ऑडियंस की सोच बदलती है, हमारा काम बदलता है, हमारा स्टाइल बदलता है, हम उनके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं कि वो जो चाहते हैं हम उनको दें। तो बराबरी की कोई बात नहीं हुई यहाँ पे, इसलिए आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बराबरी है। वहाँ कुछ अलग किया था, उसके बाद कुछ अलग किया, आज कुछ अलग कर रहे हैं। तो वक्त के साथ हम बदल रहे हैं। Ilyana, please complete that answer. That question was interrupted. You were supposed to answer. No, that's
that's all right. I'm totally fine. In fact, I was going to say that it's very similar to what Isha said. When you're working with great actors, your experience gets a lot better. And Milan ke saath especially was an amazing experience. I think मैंने ज़्यादा तंग Milan को किया है because I was messaging him throughout before even the film started because I was very excited about this film. And I think it's my most special film in my career, and I'm very excited about it. Thank you. Hi, Milan. This is Swati from Ashtar. My question is this for you. This film 1970s का backdrop है और आपकी previous films में भी चाहे वो Once Upon a Time in Mumbai हो, Dirty Picture हो, एक period drama ज़रूर देखने को मिलता है. So मैं आपसे जानना चाहूँगी, what is this fascination with the period drama कि आप दर्शकों को 70 या 60, 80 के दशक में ले जाते हैं पीछे? इसके दो जवाब हैं. पहला तो ये कि मैं पीरियड को नहीं ढूंढता हूँ, वो कहीं से आके मुझे पकड़ लेता. इस बार सोचा था कि पीरियड फिल्म नहीं करेंगे, लेकिन ये कहानी हमारे जहन में थी और दोबारा सामने आ गई. दूसरी वजह ये है कि आई फील आज के दौर में ड्रामा कम हो गया है. आज वो माचोइज्म जो एक हीरोज़ का था, या एक नज़ाकत जो हीरोइंस की थी, या एक खौफ जो विलन का था, वो शायद डाइल्यूट हो गया है. और इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो सिनेमा वापस उस तरफ जा रहा है. अगर जो सबसे पॉपुलर वेब सीरीज़ हैं नेटफ्लिक्स पे और अमेज़ॉन पे, वो भी उस तरफ जा रही हैं. इट्स लार्जर देन लाइफ, इट अपील्स टू मी पर्सनली. और वो जब उस किस्म के डायलॉग्स हमको पसंद हैं, उस दौर का म्यूज़िक हम पसंद करते हैं, और मेरे ख्याल से ऑडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन से दौर की फिल्म अच्छी होनी चाहिए. तो कहानी जैसे जैसे आती जाती है हम बनाते जाते हैं. मैंने कंटेम्प्रेरी फिल्में भी बनाई हैं, जैसे टैक्सी 9-11, कच्चे धागे. तो ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है, ये एक कोइंसिडेंस रहा है कि पिछली 3-4 फिल्मों में ये इस टाइप की चीज़ें हमारे सामने आई. My question is to Isha and Ileana. आप लोगों के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था, जैसे कि यू वर टॉकिंग अबाउट प्रीवियसली. सो एक 70s का जो ग्लैमर है उसका एक अलग ही चार्म है, और किस तरीके से आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा उस ग्लैमर को, उस अंदाज को पर्दे पर लाना, क्योंकि 70s की जब हम बात करते हैं सो एक आइकॉनिक एक्ट्रेसेस रही हैं जिनका हमें लुक और उस स्टाइल अभी तक हमारे जहन में आता है. तो आप लोगों के लिए कोई इंस्पिरेशन रहा? What was the challenges, or you guys brought your input into the roles? You know, honestly, I've not kept a reference point. ना तो मैंने कुछ reference की है, nor some homework of any sort. I think at the most Milan ने किया होगा, but I think my only reference was for clothes and costumes and maybe hairstyles. But अगर characterization की बात की तो it's genuinely what Milan and I probably felt Gitanjali should be like. And अगर आप ग्लैमर की बात करो तो आई हैवंट कॉन्शियसली थॉट अबाउट हाउ ग्लैमरिश गीतांजलि इज. गीतांजलि रानी है तो देयर इज दैट ग्रैंडियर अबाउट हर, बट देयर इज लॉट्स ऑफ ऑथेंटिसिटी. शी इज थ्रोन इनटू जेल एंड शी इज इन जेल फॉर फ्यू डेज, सो देयर इज अ लॉट ऑफ रगडनेस टू द रोल एज वेल, एंड वी फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैरेक्टर. तो आई थिंक आपको एक बहुत ही बैड एस किस्म की रानी नजर आएगी बादशाहों में, एंड दैट्स व्हाट आई फोकस्ड ऑन. सो थैंक यू. I think मेरे लिए because it's a little more urban character 70s का, Milan sir and जो my stylist है Payal, they did all the homework, but Milan sir को बस ये था कि he wanted the beauties like we have Parveen Babi and Zeenat Aman. तो he said कि मुझे वैसा चाहिए, लंबे काले बाल, and whether it's the makeup वैसा या कपड़े वैसे. Even when it came to something like a workout, अगर आप देखिए उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग लगती थी. दे वर ऑल वेरी फेमिनिन बट स्ट्रॉन्ग वुमेन. तो मिलन सर को वही चाहिए था कि दैट काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड दैट काइंड ऑफ लुक्स. अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इट वाज हिम. One question in continuation to what you said, Ileana. Excuse me. Ileana, just in continuation to what you said, you're playing a royal in this film. Yes. So, but you said that there was no reference point. But of Not to course, you have plenty of examples from that era of royals and queens. So, did you take inspiration in terms of your body language, your character from Not any at of them? all. Not at or all. Or did you draw on them from? When you have a script that's so well written and when you have a character that's so well written, as Milan put it, it's quite author-backed. You don't really need a reference point. I prefer sort of using my own understanding of the character and playing it according to what I feel. And then I have a director like Milan guiding me throughout. So I didn't see the sense and the reason to even go through a reference point. As lovely as reference points may have been, I think Milan's fairly happy with what Gitanjali's come up with. So
And of course, one overrated question to all of you that you said the film is set in Rajasthan. So how important is the setting? Is it just a place where it is set, or does it come across as a character in itself? I think from whatever people have seen and responded, we have tried to break the clutter of the recent films that have come. This kind of landscape and terrain has not been seen for a long time. So it's very, very much a character in the film. And going back to Rajasthan after so many years, I wanted to present it in a very new way. We're extremely fortunate that we found some locations which were absolutely virgin, with no buildings, no structures, no hoardings, no electric poles. So that has added to that barrenness that I wanted, and it's very fresh. Every location that we shot is extremely fresh, largely, I think, not even been exposed on film. And there are many colors. We went from Jodhpur to Jaisalmer to Bikaner. We shot near the border, which has virgin sand dunes. So I think it's a nice visual change for the viewer. Excuse me. Excuse me. क्योंकि एक चीज़ होती है तो फिर सवाल उसी पे चलते रहते हैं. नहीं, ऐसी बात नहीं है. हमें देखिए बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार शोज़ कैंसिल हुए हैं और वो बीमार भी रह रहे हैं, तो आई रियली डोंट नो हुआ क्या है. बट उसमें लिखा गया कि हम लोग गुस्से में निकल गए. गुस्से में नहीं निकल गए, हम निकल गए क्योंकि वो पहुंचा नहीं था. एंड दोस्त है, तो जब भी अगली बार बात होगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या था. ऐसा किसी ने मना नहीं किया. आप शाहरुख ने कहीं स्टेटमेंट दी नहीं है. ये आपने डिसाइड कर लिया. नहीं, किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी, ना मैंने स्टेटमेंट. नहीं, देखिए ऐसी नाराज़गी नहीं होती है. अब सब यहाँ पे कलीग्स हैं, सब अच्छा काम करते हैं. जब मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं. तो उस दिन कोई तकलीफ हुई होगी, आई रियली डोंट नो. जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक नाराज़गी है नहीं है इसका जवाब मैं दे ही नहीं सकता. सर एक्सक्यूज़ मी. मेरा नाम सलमा फ्रांसिस है. मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ. आप सभी को पहले तो मुबारकबाद देती हूँ आपकी मूवी के लिए कि आप काफ़ी ढेर पैसा कमाएं और आगे तरक्की पाएं. बट मेरा एक सवाल है आपसे. आजकल जो देश में विमेन सेफ्टी के इशू को लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्या आपकी फिल्म से ऐसा कोई मैसेज जा रहा है पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए, जो कि एक सीख मिल सके? कोई ऐसा पिक्चर में कोई मैसेज है? ये कोई मैसेज वाली फिल्म नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हमारी फिल्म में क्लियर होती है कि औरत हो या मर्द हो, सब एक बराबर है. तो ऐसा नहीं, हमारी फिल्म में अगर मर्द उतने स्ट्रॉन्ग है तो ये जो लड़कियां हैं ये भी उतनी स्ट्रॉन्ग है. तो ये अगर आप इसको अगर मैसेज के तौर से ले सकते हैं तो ये है. Just last question. दूसरी गज़ल नहीं है, वो फोक सॉन्ग है. नहीं, म्यूज़िक की कभी कोई वजह नहीं होती. अगर आपको गाना अच्छा लगता है आप फिल्म में डाल देते हैं. थोड़ा सा आप ये देखते हैं कि पीरियड के हिसाब से वो उसके सिलेक्शन हो और अच्छे लगे हमको गाने और लोगों को भी अच्छे लग रहे हैं. म्यूज़िक हम इतना ज़्यादा सोच के नहीं बनाते. जो चीज़ सामने आती है अच्छी लगी उठा ली. Hello. This is going to be the last question. Hello. मेरे ख्याल से लगभग 3,500 स्क्रीन्स में ये फिल्म रिलीज होगी.